गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़े थे। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 molecules nitrogenous base phosphate and sugar, while nucleoside consists by combination of 2 molecules that are nitrogenous base and sugar. Okay, now we know about DNA. DNA deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid discovered by Frederick Messer and term DNA coined or given by Jayseris. Okay, DNA consists of phosphate group, sugar, and in DNA deoxyribose sugar are present, deoxyribose sugar and nitrogenous base. In nitrogenous base adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, Wilkins and Franklin used X-ray crystallography method to study the 3D structure of DNA. Okay, while double stranded helix model of DNA was given by Watson and Crick in 1953. Okay, and in 1962 Wilkins, Watson and Crick awarded by Nobel Prize in 1962. और नोबेल प्राइज किनको किनको मिला था? 3 थे, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक. ओके, DNA according to Watson and Crick model of DNA is double stranded ladder like polynucleotide molecules, or in other word we can say that DNA is double polynucleotide molecule in which both polynucleotide molecules are parallel and opposite in nature. 2 polynucleotide मोलिक्यूल चेन का बना है और वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. वन इज इन डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' एंड अदर इज 3' to 5'. बोथ polynucleotide chain of DNA are present in parallel form, but direction is opposite. And due to opposite direction we can say that nucleotide molecules are anti-parallel. Anti-parallel है पैरेलल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. दिखाऊं मैं,
DNA is double polynucleotide molecule in which both chain of polynucleotide are anti-parallel and opposite. Opposite means one strand is in 3 to 5 dash and other strand is 5 dash to 3 dash. ठीक है. DNA bases are present in complementary form. Complementary form means adenine with thymine and guanine with cytosine. The complementary base of adenine is thymine, complementary base of guanine is cytosine. Okay, and these nitrogenous bases are also attached bond by hydrogen bond, and due to presence of hydrogen bond both polynucleotide chains are combined together. Okay, now see, suppose that S sugar in DNA, deoxyribose sugars are present. Okay, these sugars are attached with phosphate, phosphate. Three dash 5 dash, 3 dash 5 dash. These are the number of carbons present in sugar. 3 dash 5 dash. अब देखिए, phosphate is attached with 5 carbon of one sugar and 3 carbon of other sugar. 5 with one, 3 with other. This like. But in other polynucleotide chain, three dash, 5 dash, 5 dash, 3 dash, 5 dash, 3 dash, 5 dash, 3 dash. It means 3 with one, 5 with other. This like. Okay, and sugar is attached with base. Sugar is attached with base. Base is of 4 types: adenine, guanine, cytosine, and thymine. Suppose that this is A, G, C, T, A, G, C, T. Okay. Complementary base of adenine is T. It means it is attached with T. T with sugar. G with C. C with sugar. C with G. G with sugar. T with A. A with sugar. Okay. ठीक है ना? Adenine with thymine, guanine, cytosine, cytosine, guanine, thymine, adenine. And hydrogen bond present between adenine and thymine, double hydrogen bond. Between guanine and cytosine, triple hydrogen bond. Guanine, cytosine, triple hydrogen bond. Thymine, adenine, double hydrogen bond. ठीक है, अब देखिए, 3 dash carbon of one sugar is free at one end, and at another end 5 dash carbon is free. It means अगर simply देखा जाए in this way, okay, this is 3 dash. तो जब एक न्यूक्लियोटाइड चेन का 3 डैश एक एंड होगा तो इसका दूसरा एंड 5 डैश होगा.
other is 5 dash and 3 dash. Okay. Now the bond present between two base, hydrogen bond, okay, bond between sugar and base, glycosidic bond, and bond between phosphate and sugar, this bond, phosphoester bond. So these three types of bonds are present in DNA. Okay, and according to Bartson and Crick model, the width of the DNA is always fixed. इसकी जो चौड़ाई होती है हमेशा फिक्स्ड होता है, और फिक्स होने का रीजन क्या है? जनरली इन डीएनए वन प्यूराइन इज अटैच्ड विथ पायरिमिडीन. एक प्यूराइन होगा, वह पायरिमिडीन के साथ होगा. जनरली यू नो प्यूराइन इज डबल चेन स्ट्रक्चर दिस लाइक, एंड पायरिमिडीन इज सिंगल चेन स्ट्रक्चर. तो एक डबल एक सिंगल, फिर अगर इधर डबल है तो इधर क्या होगा? सिंगल होगा. सॉरी, इधर सिंगल इधर डबल होगा. वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 2 2 4 5. ओके, ठीक है. अब देखिए, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ प्यूराइन एंड पायरिमिडीन बेस, द विड्थ ऑफ डीएनए इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर कहीं दोनों सिर्फ ए मिल जाता, सिंगल चेन वाला, कहीं मिल जाता डबल चेन वाला, कहीं मिल जाता डबल चेन वाला, रिजल्ट क्या हो जाता? यहां का विड्थ कम हो जाता, यहां का विड्थ ज्यादा हो जाता. लेकिन यहां क्या है? एक सिंगल चेन वाला है, एक डबल चेन वाला. मीन्स one purine other pyrimidine, one purine other pyrimidine, and due to arrangement of nitrogenous base in DNA molecule, the width of DNA molecule is constant or same. Okay, next, this is a structure of DNA, and due to coiling of two polynucleotide chain, one major groove and other minor groove are formed. One is major groove, other is minor groove. One major and one minor, one minor plus one major. This like देखें, this is minor and this is major. One minor plus one major is called one turn. One turn, and length of one turn is 34 angstrom. Length of one turn is 34 angstrom, and in one turn 10 base pairs are present. One turn में कितना base pair होगा? तो 10 base pairs are present. ठीक है ना? अब देखिए, in length of 34 angstrom 10 base pairs are present. So the length between two base pair 34 by 10 is equal to 3.4 angstrom. Length between two base pair is 3.2 angstrom, and the width, अगर हम यहां से यहां तक width की बात करें डीएनए का, तो width होगा 20 angstrom. width क्या होगा? 20 angstrom. चलिए, तो याद रखना है, दो न्यूक्लियोटाइड, दो बेस के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम, विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम. ओके, एक पॉइंट और देख लें. जनरली सुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर इज अटैच्ड विथ बेस. यहां हमने लिखा ए. एडिनिन मीन्स प्यूराइन, गुआनिन प्यूराइन, साइटोसिन पायरिमिडीन,
थायमीन, पायरिमिडीन। अब देखिए इन मीन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 1 dash carbon of sugar, 1 dash carbon of sugar with 9 dash carbon of प्यूराइन, प्यूराइन के 9 नंबर से। और अगर हम पायरिमिडीन की बात करेंगे तो शुगर का 1 डैश और बेस का ऑल्सो 1 डैश। दिस लाइक किसी किसी बुक में कहीं कहीं 3 डैश मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसे 1 1 1 9 के साथ टच होगा। 9 नंबर पर 1 मिनट 1 2 9 नंबर पर कार्बन 1 number of sugar, 1 number carbon of sugar is attached with 9 number of nitrogen of adenine means purine and 1 number nitrogen of pyrimidine. Okay. Next, Chargaff's equivalence rule. According to Chargaff, in double stranded DNA molecule, the amount of purine base is equal to pyrimidine base because in DNA molecule one purine is attached with pyrimidine. प्यूराइन के साथ पायरिमिडीन अटैच है तो हमेशा डीएनए में प्यूराइन और पायरिमिडीन का अमाउंट इक्वल होगा और इसी रूल का नाम दिया जाता है चारगाफ इक्विवेलेंस रूल। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूराइन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। अब देखिए प्यूराइन में कौन कौन आएगा तो एडिनिन, एडिनिन प्लस गुआनिन, एडिनिन गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन मीन्स साइटोसिन प्लस थायमिन। एडिनिन गुआनिन इज इक्वल टू C प्लस T, इट मीन्स A प्लस G बाई C प्लस T इज इक्वल टू 1। A प्लस G बाई C प्लस T इज इक्वल टू 1। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड चारगाफ रूल। अब इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले बताया था मैं। सपोज दैट क्वेश्चन देखें, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एडेनिन इज 20%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन। एडेनिन इज 20% एंड एडेनिन ऑलवेज कनेक्ट्स विथ थायमिन। तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा बिकॉज एडेनिन इज अटैच्ड विथ थायमिन। इट मीन्स A 20%, थायमिन ऑल्सो 20%, A 20%, थायमिन ऑल्सो 20% because A is attached with थायमिन। Okay, and next A plus T is equal to 40%. It means C plus G is equal to 100 minus 40 is equal to 60%. And you know C is attached with G, हमेशा C G से अटैच होगा, जितना C होगा उतना ही G होगा। हमको G निकालना है तो लिख सकते हैं G प्लस G is equal to 60%, 2G is equal to 60%, so G is equal to 60 by 2 30%. Okay, next is base ratio means ratio of nitrogenous bases present in DNA. Generally you know in DNA A is attached with T, G is attached with C. It means A plus T by C plus G is equal to constant in a species, and it is also called a species a specific. ये फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट है अलग अलग स्पेसीज में और स्पेसीज के आधार पर यह वैरी करेगा।
ह्यूमन का देखें बेस रेशियो कुछ और होगा, किसी दूसरे एनिमल का देखें बेस रेशियो कुछ और होगा, लेकिन एक स्पेसीज में यह कांस्टेंट होगा. सो इट इज कॉल्ड अ स्पेसीज अ स्पेसिफिक. ओके. एंड टाइप्स ऑफ डीएनए ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बेसिस. जैसे अगर हम देखें A प्लस T इज ग्रेटर देन द C प्लस G और C प्लस G इज ग्रेटर देन द A प्लस T. किसी में इसका अमाउंट ज्यादा होगा, किसी में इसका अमाउंट ज्यादा होगा. अगर A और T का अमाउंट ज्यादा हो गया, वैसे डीएनए को कहेंगे AT टाइप ऑफ डीएनए. AT type of DNA and this is called CG type of DNA. ठीक है ना. अब देखिए अगर A और T का अमाउंट G और C से ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में बेस रेशियो क्या होगा? बेस रेशियो more than one, and in this condition base ratio less than 1. Okay, more than 1 base ratio is the characteristic features of eukaryotes. It is found in eukaryotes, and this type of DNA found in prokaryotes. As for example, in human, base ratio is greater than the 1, such as for a skin cell and liver cell, the base ratio is the liver cell and a skin cell base ratio is more than 1, and that is 1.3. 1.3 more than 1. And in human, generally DNA, in case of human, nuclear DNA and extranuclear DNA. In eukaryotic cell or in human cell, some DNA present in nucleus or in chromosome, and some little amount of DNA also present outside the nucleus. It means in mitochondria or in plastic. ठीक है ना. उसमें भी डीएनए होता है जिसके कारण उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहते हैं. अब देखिए जो न्यूक्लियर डीएनए होगा यह होगा AT टाइप, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिक में डीएनए होगा वह होगा CG टाइप. ठीक है ना. एंड CG टाइप इज फॉर प्रोकैरियोट्स. एज फॉर एग्जांपल अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे तो ई कोलाई का बेस रेशियो हो जाएगा 0.94, BR 0.94, यानी लेस देन 1. और यूकैरियोटिक के लिए बताया कितना? स्किन सेल, लिवर सेल 1.53, सॉरी 1.53, मोर देन 1. अब यहां देखिए न्यूक्लियर में तो AT टाइप, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में CG टाइप. And the melting point of DNA depends upon amount of C and G nitrogenous base. Melting point of DNA depends upon amount of cytosine and guanine base pair of DNA. Melting point of DNA depends upon amount of C and G bases. It means CG base मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम C बेस को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा.
साइटोसिन ग्वानिन बेस का अमाउंट बढ़ेगा, रिजल्ट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। सो अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज greater than the eukaryotic DNA. It means prokaryotic DNA MPO melting point of prokaryotic DNA is greater than the melting point of eukaryotic DNA. Understand? अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है, मेल्टिंग अगर कोई डीएनए मोलिक्यूल्स है और उस डीएनए मोलिक्यूल को हाई टेम्परेचर देते हैं, डीएनए मोलिक्यूल है उस डीएनए को हाई टेम्परेचर दें, सपोज दैट दिस इज डीएनए मोलिक्यूल, अगर इसको हाई टेम्परेचर मिला मींस 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, देन सेपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अकर्स, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच का जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करेगा, रिजल्ट क्या होगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब देखिए हो गया डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर था उस नेचुरल स्ट्रक्चर से अलग हो गया, यहां दोनों बेस पेयर क्या हो गया, अलग हो गया। अब अगर इस डीनेचर्ड डीएनए को फिर से नॉर्मल टेम्परेचर दिया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर, रिजल्ट क्या होगा, फिर से वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन और एनेलिंग। इसका नाम क्या देंगे, यानी ये यहां से फिर से वापस आ जाएगा इधर, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन इधर डीनेचुरेशन। ठीक है, नाउ सम प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस फ्रॉम डीएनए। नाउ सी सम क्वेश्चंस related with DNA. First question, base ratio of DNA is 0.05 base ratio and the amount of AT content is 1000, then how many guanine base present in DNA? बेस इसमें दिया हुआ है क्या, बेस रेशियो मीन्स A प्लस T बाई C प्लस G इज इक्वल टू 0.05, अमाउंट ऑफ AT इज गिवन, तो हम लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, 1000 बाई C प्लस G इज इक्वल टू 0.05, ओके। सो C प्लस G इज इक्वल टू 1000 बाई 0.05, यहां से दशमलव हटाइए, ऊपर 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीन्स 1 2 3 4, ठीक है ना। इट मीन्स किसका अमाउंट आ गया, ए अमाउंट आ गया C प्लस G का, क्वेश्चन में है G, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है G, तो G का अमाउंट हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं G प्लस G इज इक्वल टू 20,000, 2G इज इक्वल टू 20,000, G इज इक्वल टू कितना 10,000, G इज इक्वल टू 10,000, ओके। तो G कितना हो गया 10,000, या लिख सकते हैं इसको हम G इक्वल टू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर कितना लिखे हैं 4,
ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 20,000 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डीएनए सेगमेंट। बेस पेयर कितना है तो 20,000 है। जनरली यू नो 10 बेस पेयर is equal to 34 angstrom. So one base pair is equal to 34 by 10. 20,000 के लिए कितना हो जाएगा 34 by 10 into 20,000, ये क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये क्या है, किसका निकलेगा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 34 by 10 into 20,000 into 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है। 10 to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलेंगे तो उसको डिवाइड करना होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2.5 किलो बेसेस आर प्रेजेंट and the amount of adenine is 800. Amount of adenine is 800. Number of base pair 2.5 kilo base. Find the amount of guanine. 2.5 kilo bases means 2.5 into 1000. 2.5 कितना हो जाएगा 2500 बेसिस, 2500 बेसिस। और इसमें एडेनिन कितना है देखिए तो A इज इक्वल टू 800, तो A 800 इट मीन्स T ऑल्सो 800, तो T प्लस A इज इक्वल टू 800 प्लस 800 बराबर 1600, C प्लस G इज इक्वल टू 2500 minus 1600 900। निकालना किसका है वैल्यू हमको गुआनिन का। C और G इक्वल मीन्स 2G इज इक्वल टू 900, सो G इज इक्वल टू 450, G इज इक्वल टू 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 10 molecule of sugars are present. Okay, then how many purine bases are present? नंबर दिया हुआ है किसका सुगर का, ध्यान दीजिए सुगर 10 मोलिक्यूल, तो जितना सुगर होगा उसी सुगर से अटैच होता है बेस। इट मीन जब सुगर 10 मोलिक्यूल्स है तो नाइट्रोजनस बेस इज ऑल्सो 10 मोलिक्यूल्स, 10 मोलिक्यूल्स होगा नाइट्रोजन बेस का। एंड नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ 2 टाइप्स, तो इस 10 में दोनों तरह का होगा। कौन कौन, प्यूराइन भी और पायरिमिडीन भी, प्यूराइन भी पायरिमिडीन भी, ठीक है ना। और प्यूराइन और पायरिमिडीन का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। इन डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूराइन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, इट मीन्स प्यूराइन 5, पायरिमिडीन बेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्यूराइन बेस और 5, आंसर। ओके, नाउ वी नो टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए। DNA is classified on the basis of position and twisting। दो आधार पर डीएनए को क्लासिफाई किया गया है, या तो उसके पोजीशन या फिर ट्विस्टिंग के आधार पर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डीएनए इज ऑफ 2 टाइप्स, सम डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सम आउटसाइड द न्यूक्लियस। कुछ न्यूक्लियस के अंदर, कुछ न्यूक्लियस के बाहर। जो न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियर डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड कैरियोजीन। The amount of carryogen in a cell 95 to 99%. And outside the nucleus, it means cytoplasm, cytoplasmic DNA, also called cytogene, amount 1 to 5%. It is present in mitochondria,
in plastid or in little amount, maybe in centriole. Okay, so in case of eukaryotic cell, on the basis of position, two types of DNA are present, nuclear DNA and cytoplasmic DNA. And second basis is ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए। ट्विस्टिंग मतलब जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका क्वाइलिंग किस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, यानी इसका ऐसे हुआ है या ऐसे हुआ है। इसी के आधार पर हमने ट्विस्टिंग की बात किया है। ट्विस्टिंग लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड दिस लाइक, राइट हैंडेड दिस लाइक, लेफ्ट हैंडेड इधर से इधर, राइट हैंडेड दिस लाइक, ओके, एंड राइट हैंडेड दिस लाइक and this like. Right handed is also called clockwise, left handed एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉक जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूम रहा है ना, जैसे कि अगर हम क्लॉक की बात करें तो 1 2 3 4 तो डायरेक्शन अगर ये है तो क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन इधर से है तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, ठीक है ना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड द एग्जांपल ऑफ क्लॉकवाइज जेडीएन, एंड एग्जांपल ऑफ क्लॉकवाइज ए बी सी एंड डीएनए, डीडीएन, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, एंड द मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाई बार्टसन एंड क्रिक इज ऑफ बी डीएनए। बार्टसन और क्रिक का जो भी मॉडल था वह बी डीएनए के लिए दिया गया था, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा फीचर सबका, क्या क्या कैरेक्टर्स है। नाउ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। In these five DNA, 4 are right-handed twisting, 1 is left-handed twisting. It means these 4 are clockwise, this is in anti-clockwise direction, okay. And helix length means length of one turn. एक टर्न का लेंथ क्या है तो 20, 34, 31, 24, 20.42 it is. Number of base pair in one turn, diameter of DNA एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ठीक है ना। तो ये टाइप्स हो गया डीएनए। एक याद रखेंगे कि जो बार्टसन और क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया है वह मॉडल कौन था बी डीएनए के लिए। और बी डीएनए में जैसे अभी सपोज दैट एक बेस पेयर यहां है, दूसरा बेस पेयर यहां है, तीसरा यहां है, 10 बेस पेयर में जाकर के एक कंप्लीट टर्न होता है। मतलब एक बेस से दूसरा बेस में थोड़ा सा मूव किया, फिर दूसरा से तीसरा में थोड़ा सा और टर्न हुआ, तो टोटल 10 पर जाकर के 1 राउंड हो गया। 1 राउंड मीन्स 360 डिग्री। एक पूरे राउंड यहां से शुरू हुआ, घूमते 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 कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री हो गया ना। अब 360 डिग्री कितना बेस पेयर में 10 बेस पेयर में। इसका मतलब है कि एक बेस पेयर यानी 2 बेस पेयर के बीच का जो टर्न होगा 360/10 मीन्स 36 डिग्री। 2 बेस पेयर के बीच का जो टर्न होता है, क्वाइलिंग होता है, वह है 36 डिग्री। ओके, तो आज हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है। इसके बाद पहले हम लोग आरएनए देख लेंगे, तब फिर जाएंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का पैकेजिंग, आगे फिर स्ट्रक्चर हम लोग देखते चलेंगे। ओके, थैंक्स।